Hello everyone, welcome back to Learn Then Code. So in the data structures and algorithm in C++ playlist, we have covered the sequence container which are available to us in standard template library in C++, right? And in the last video, we also learned about greedy algorithm. And then we solved some lead code problem out of greedy algorithms and sequence containers. So I think this is the right time to move ahead with the next type of containers which are available in the STL. And these are associative containers. So there are two types of associative containers we have in C++. One are ordered and second are unordered in nature. So first let's understand what is the difference between sequence containers and associative containers, and then we can move ahead with the type of associative containers that we have. So the basic difference between sequence containers and associative container is that sequence containers have a sequence in nature. For example, array. So you can access the elements of array in sequence way, right? There is a 0th element, then after 0 there is a element at index 1, then 2, then 3. So there is a sequence between all the elements. But in case of associative containers, you do not have a sequence. You can only access an element using a key value. So there is a key value nature in associative container. For example, let's say you have a phone directory. So how you save your phone numbers? Let's say Ramesh has this number, then Rakhi has this number, then Aman has this number. So there is a key value pair nature, right? So in associative container, you can only access the element using the key value. So this is the basic difference between sequence containers and associative containers. So in associative containers also we have two types. One is ordered in nature and second is unordered associative containers. So in order we have containers like maps and set, and in unordered we have unordered maps and unordered set. So inka implementation is different, and that is why the time complexity of all the like creation and deletion and find operation are also different. So in this video we are going to cover maps and unordered maps and how they are implemented internally, so that we can basically learn about the difference between ordered associative containers and unordered associative containers, right? So without any further delay, let's get started with the video. So before moving forward, we have to first understand how maps and unordered maps are implemented internally. So maps use BST. BST is binary search tree, right? And unordered map use hash table. And in BST also self-balancing binary search tree. Self-balancing binary search tree. Now these are all complex terms जो मैंने अभी use करे हैं, तो let's try to simplify them. So BST में क्या होता है? हमारा जो पेरेंट नोड होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बाइनरी सर्च ट्री. दैट मीन्स हमारा जो एक नोड है उसके एट मैक्स 2 चाइल्ड हो सकते हैं खाली, एंड उसमें भी एक प्रॉपर्टी है दैट ऑल द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ नोड्स ऑफ अ पेरेंट नोड शुड बी लेस देन the parent node and all the right side node should be greater than the parent node. So for example, अगर मेरे पास 3 एलिमेंट है 5, 11 and 2, एंड हमें इन्हें सीक्वेंस से एक बाइनरी सर्च ट्री में क्रिएट करना है. So सबसे पहले हम 5 को बनाएंगे अपना पेरेंट नोड, देन 11 वी नो दैट 11 इज ग्रेटर देन 5, सो ये इसके राइट में आएगा, एंड 2 वी नो दैट 5 से छोटा है तो ये इसके लेफ्ट में आएगा, राइट? एंड अब इसके बाद अगर 6 एक एलिमेंट आ जाए तो हम कैसे चेक करेंगे कि 6 जो है वो 5 से बड़ा है, दैट मीन इट शुड लाई इन द राइट साइड ऑफ 5, एंड राइट साइड में हमारे पास क्या है 11. तो अब जो 11 है उससे अगर हम 6 को कंपेयर करें तो 6 शुड बी इन द लेफ्ट चाइल्ड, राइट? सो दिस इज अ BST. नाउ अब मैंने यहाँ पे बोला सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री. सेल्फ बैलेंसिंग का मतलब क्या है? अब प्रॉब्लम क्या होती है BST में, हम हाइट को कैसे टैकल करें, क्योंकि BST को ट्रेवर्स करने में जो हमारा नॉर्मल टाइम लगता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज log of n, क्योंकि हमें हर बार अपने सर्च स्पेस को हाफ में डिवाइड करना है, एंड जो बाकी हाफ बचेगा उसमें जाके अपने फर्दर सर्च को एग्जीक्यूट करना है. सो दैट इज वाई लाइक अगर हमें यहाँ पे 6 को फाइंड करना होगा, हम क्या करेंगे? सबसे पहले 5 पर जाएंगे. हमें पता है कि 6 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड हमें नहीं मिल सकता क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5. तो हमने अपनी सर्च स्पेस को हाफ किया एंड राइट साइड फाइंड करना स्टार्ट किया. सो इस चीज को एग्जीक्यूट करते हुए हम हर बार अपना जो सर्च स्पेस है उसे हाफ कर रहे हैं. दैट इज वाई आवर कॉम्प्लेक्सिटी इज log of n.
नाउ जैसे जैसे ये हाइट ऑफ द ट्री इंक्रीज होती है वैसे वैसे ये कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज होती रहती है, बिकॉज इट इज अ फैक्टर ऑफ n, राइट। सो हम क्या चाहते हैं कि हाइट जो है वो एज मिनिमम एज पॉसिबल हो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ बैलेंसिंग ट्रीज का। उनका मतलब क्या होता है कि अगर एक ट्री, अगर एक बीएसटी हमें पता चल रहा है कि राइट साइड बहुत ज्यादा नोड्स क्रिएट हो रही है, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, तो हम क्या ट्राई करेंगे कि यार हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 नोड्स है, राइट। तो हम चाहेंगे 7 नोड से सबसे सिंपलेस्ट बीएसटी क्या बन सकता है, सबसे छोटी हाइट का। 1 2 3 4 5 6 7, this can be the BST with 7 nodes and minimum height. So हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो जाएगी, right? So there are type of BST, for example red black BST और AVL tree, जो सेल्फ बैलेंसिंग इन नेचर होते हैं। वो क्या ट्राई करते हैं कि हमारी हाइट अगर 1 के डिफरेंस से ज्यादा हो रही है तो हम क्या करेंगे, अपने पूरे ट्री को ऐसे स्ट्रक्चर करेंगे, ऐसे रीस्ट्रक्चर करेंगे कि इसकी जो हाइट है वो कम हो जाए। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग ट्रीज, ठीक है। तो मैप में हम ट्राई करते हैं, बिकॉज एसटीएल का मेन पर्पस क्या है कि हम इजी इम्प्लीमेंटेशन में, ताकि यूजर को कोई काम ना करना पड़े, हम ऐसी इम्प्लीमेंटेशन करें जो एफिशिएंट हो इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस एंड ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, राइट। सो इस केस में हम मैप्स के अंदर बेसिकली यूज करते हैं रेड ब्लैक ट्रीज को। एंड ये चीज याद रखना, क्योंकि कई बार ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि इंटरनली मैप्स और अनऑर्डर्ड मैप्स क्या यूज करते हैं। तो इन केस ऑफ मैप्स वी यूज रेड ब्लैक ट्री विच इज अ काइंड ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। अब रेड ब्लैक ट्री क्या होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट इन शॉर्ट टर्म्स यू कैन से कि सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री होता है, एंड इसमें हम हर नोड को कलर देते हैं आइदर रेड और ब्लैक, एंड बेस्ड ऑन चेकिंग द कलर बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड नोड हम ट्राई करते हैं कि हमारी जो हाइट ऑफ बीएसटी है वो एज मिनिमम एज पॉसिबल हम कर पाए, मेंटेन कर पाए। सो because we are using a BST, so all the time complexity in map for functions like insertion, deletion and find, जो हमारी complexity होगी वो होगी log of n, ठीक है। एंड इन अनऑर्डर्ड मैप हम अपना हैश टेबल यूज करते हैं। अब हैश टेबल क्या होती है, इसे एक काफी बेसिक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है, अभी के लिए टेबल को समझ लो एक एरे की तरह। हमारे पास एक 2D एरे है, ये हमारा इंडेक्स है, एंड हमने हर इंडेक्स को एक वैल्यू दे रखी है। लेट्स से 0 पर हमने वैल्यू डाल रखी है x, y, z, a, b, c, समथिंग लाइक दैट। अब इसे हम असेस कैसे करेंगे, हम बोल सकते हैं लेट्स से द नेम ऑफ दिस एरे इज a। अब हम बोलेंगे एरे ऑफ 0, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x, एरे ऑफ 3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a, राइट। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पास काइंड ऑफ एक हैश वैल्यू है जिसको हमने मैप किया हुआ है a के साथ। हमने 3 को बोल दिया, 3 को हमने मैप कर दिया a के साथ, 2 को मैप कर दिया z के साथ। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हैश टेबल। हम क्या करते हैं, एक वैल्यू देते हैं, हमारे पास एक हैश फंक्शन होता है जिसके अंदर हम एक इनपुट पास करते हैं, एंड वो हमें रिटर्न में एक हैश वैल्यू रिटर्न कर देता है। उसका टाइप कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी के लिए इंट ले लेते हैं, फॉर सिंपल केस अभी के लिए इंट ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक हैश फंक्शन बनाया जिसमें इनपुट वैल्यू कुछ भी आ सकती है, रिटर्न में एक इंट मिलेगा मुझे विच कैन बी यूज्ड एज अ इंडेक्स फॉर दिस हैश टेबल। सो इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट्स से आई वांट टू इम्प्लीमेंट अ हैश फंक्शन, दिस इज माय फंक्शन, जहाँ पे मैं एक कैर दे रही हूँ एंड मुझे रिटर्न में उसका इंडेक्स मिल रहा है, एंड इट कैन बी रिटर्न a माइनस a। सो इसका मतलब क्या होगा, फॉर a कैरेक्टर मुझे 0 रिटर्न होगा, फॉर b मुझे 1 रिटर्न होगा, फॉर c मुझे 2 रिटर्न होगा, एंड लाइकवाइज। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास एक एरे बना हुआ है, 1D एरे है, एंड आई एम सेइंग 0th इंडेक्स पर रखा हुआ है लेट्स से अलीशा, और B पर रखा हुआ है भुवनेश, ठीक है। नाउ आई एम सेइंग रिटर्न A ऑफ 0, तो मुझे क्या रिटर्न होगा, अलीशा। और इस
हैश टेबल का सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि आई हैव द नेम विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए। सो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने ए को एक हैश फंक्शन में डाला जिसने मुझे 0 वैल्यू रिटर्न करी एंड मैंने 0th इंडेक्स पर अपनी वैल्यू वाली चीज को पुट कर दिया, इंसर्ट कर दिया। सो दैट इज द बेसिक थिंग विच इज यूज्ड इन अनऑर्डर्ड मैप। एंड एज वी ऑल नो कि एरे को असेस करने का टाइम क्या होता है, O of 1, राइट, कांस्टेंट टाइम, क्योंकि अगर हमारे पास एक बार इंडेक्स है एरे का then we can directly access the element. So that is why most of the functions which are available in unordered map, उनकी complexity O of 1 होती है। Got it? So अभी तक हमने क्या क्या differences देखे? We saw that in case of maps, the time complexity is log of n for most of the functions like insert, delete and find. And in case of unordered map, the time complexity is O of 1. Second, this is implemented using red black tree. This is implemented using hash table. एंड हैश टेबल अभी जो हमने एग्जांपल लिया वो काफ़ी सिंपल एग्जांपल था, इसका जो हैश फंक्शन था वो भी काफ़ी सिंपल था, बट इन रियल केसेस काफ़ी सिनेरियोज होते हैं। फॉर एग्जांपल हैशिंग के अंदर कोलिजन्स आते हैं एंड देन कोलिजन टैकल करने की जितनी भी एल्गोरिथम्स अवेलेबल होती हैं वो हम कौन सी एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हमें केटर करना होता है। दैट इज़ वाई वी हैव STLs जो ये काम इंटरनली कर रही हैं एंड वी डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल द इम्प्लीमेंटेशन, बट यू शुड नो कि इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। इट इज़ यूजिंग हैश टेबल इंटरनली। थर्ड थिंग इज मैप आर ऑर्डर्ड इन नेचर। ये हमें स्टार्टिंग में ही पता है क्योंकि मैप्स जो है वो हमारे ऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर्स के अंदर आते हैं एंड अनऑर्डर्ड मैप इज अनऑर्डर्ड इन नेचर। दैट मीन्स हमने जितनी भी की वैल्यूज पेयर हैं उनमें कोई ऑर्डर मेंटेन करके नहीं रखा हुआ, राइट। सो दीज आर अनऑर्डर्ड इन नेचर एंड एज वी नो हम यहाँ पे रेड ब्लैक ट्री यूज कर रहे हैं एंड इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम ऑर्डर मेंटेन कर पाए, क्योंकि वी आर यूजिंग बाइनरी सर्च ट्री इंटरनली, सो वी कैन हैव अ ऑर्डर इन इट। बट अनऑर्डर्ड मैप के अंदर हम इंटरनली हैश टेबल यूज कर रहे हैं जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता until and unless हम खुद से सॉर्टिंग करना चाहें, तो इस दैट इज व्हाई इट इज अनऑर्डर्ड इन नेचर। सो ये बेसिक डिफरेंस होता है एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड अबाउट वेयर यू वांट टू यूज मैप और वेयर यू वांट टू यूज अनऑर्डर्ड मैप, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपको खाली काउंट करना है कि लेट्स से एक प्रॉब्लम लेते हैं एंड उसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। लेट्स से यू हैव अ एरे आई एम ऋषिका, I like C++. ठीक है, and now the question says that you have to count the number of strings in a map, right? So the question is you have to have a frequency of all the strings which are available in the input. So the answer would be I का frequency है 2, M का frequency is 1, then Rishika का frequency is 1, similarly like this. अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम मैप का या फिर अनऑर्डर्ड मैप का दोनों का यूज कर सकते हैं, बट एफिशिएंट ज्यादा क्या होगा अनऑर्डर्ड मैप, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है। तो वाई वी नीड टू स्पेंड log of n टाइम जब हम वो सेम काम O of 1 में कर सकते हैं, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम हर एलिमेंट पर जाएंगे, हम चेक करेंगे क्या वो एलिमेंट हमारे मैप में प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट हुआ तो उसकी वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1 एंड अगर वो प्रेजेंट नहीं हुआ देन वी इंसर्ट अ न्यू वैल्यू विद अ काउंट ऑफ 1। सो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये, फ्रीक्वेंसी सेव करने के लिए एंड काफी सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। तो इन दैट केस आई विल सजेस्ट यू टू ऑलवेज यूज अनऑर्डर्ड मैप क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट है। So this is one case. Now let us see all the functions which are available in map and unordered map. So अभी पहले मैं आपको roughly बता देती हूँ in theory and then we can go to the code also. So few of the functions are जो हमने सेम देखे थे सीक्वेंस कंटेनर्स में, सेम टाइप के फंक्शंस हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव आइटरेटर्स। सो आइटरेटर्स आपको पता है क्या होते हैं, इट इज बेसिकली पॉइंटर्स एंड यहाँ पे हम पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, अगर एक मैप टाइप का आइटरेटर है, मैप टाइप का अगर आइटरेटर है तो इस आइटरेटर की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, वन इज की एंड सेकेंड इज वैल्यू, राइट। सो यहाँ पे हम कैसे असेस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ITR इज आवर आइटरेटर, बाय डूइंग दिस, बाय यूजिंग द एरो ऑपरेटर
we can assess the key thing, and by doing the second we can assess the value. So this is one thing कि हमें अपने वैल्यूज को और कीज को कैसे असेस करना है. द सेकेंड थिंग इज हम यहाँ पे बिगिन अगेन, ये आइट्रेटर से रिलेटेड है. यहाँ पे सारे आइट्रेटर्स रन होंगे. फॉर एग्जाम्पल मैप का नाम अगर हमारा m है तो m.begin will give the first iterator, m.end will give the end iterator. So this is again related to iterator. Now अगर हमें find करना हो तो हम find कैसे करेंगे? It can be m.find and find के अंदर आप क्या डालोगे? अपनी की वैल्यू, राइट. सो इट विल गिव अस द आइट्रेटर जहाँ पे हमें ये की वैल्यू फाइंड हुआ है, राइट. नाउ अगर हमें चेक करना हो कि अगर ये की वैल्यू मैप में प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली बोल सकते हैं m.find अगर इक्वल m.end है, दैट मीन्स हमने पूरा मैप अपना ट्रेवर्स कर लिया बट हमें ये की नहीं मिली, तो दैट मीन्स दिस की इज नॉट प्रेजेंट इन आवर मैप. And one more thing, in both maps and unordered maps, क्योंकि ये की वैल्यू पेयर मेंटेन करते हैं, जो हमारी की है वो कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती. डुप्लीकेट कीज का कॉन्सेप्ट मल्टी मैप्स के अंदर आता है, मल्टी मैप्स एंड सेट के अंदर, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे. बट फॉर सिंपल मैप्स एंड अनऑर्डर्ड मैप्स हमारी जो की है दैट शुड बी यूनिक इन नेचर. सो दिस इज अगेन वन थिंग. नाउ हम यहाँ पे थे, हमने फाइंड अपना कर लिया है. इंसर्ट करने के लिए अगेन काफी बेसिक फंक्शन है, m डॉट इंसर्ट कर सकते हो और यू कैन डायरेक्टली असेस दी स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर. सो बाय सेइंग दैट m की इज इक्वल्स टू वैल्यू, आपकी जो वैल्यू है वो इंसर्ट हो जाएगी, राइट. एंड अगेन कुछ फंक्शंस है m डॉट इरेज, सो इसमें भी आप की को डालोगे तो जितने भी आपके सीक्वेंस कंटेनर्स वाले फंक्शन से ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शंस कैन बी यूज्ड इन एसोसिएटिव कंटेनर्स बाय रिप्लेसिंग द वैल्यू जहाँ पे आप इंडेक्स को यूज करते थे बाय की. फॉर एग्जांपल इरेज में आप इंडेक्स को डालने की जगह की डाल सकते हो, इंसर्ट में आप इंडेक्स को डालने की जगह की डाल सकते हो, राइट. सो दीज आर ऑल द बेसिक फंक्शन. बाकी साइज एंड बकेट साइज एंड कैपेसिटी वो सब तो होता ही है, वो सब दैट आर नॉर्मल. बट मेन थिंग जो आपकी यूज होंगी वो होगा इंसर्शन, डिलीशन एंड फाइंड फंक्शन. सो इंसर्शन कैन बी डू इन दीज वेज, फाइंड कैन बी डन डायरेक्टली एंड इरेज के लिए हमारा ये वाला फंक्शन होगा. So now let's move to the code. I think ये तो हो गया थ्योरी. अब एक बार कोड और करके देखते हैं. But before moving forward, don't forget to enroll in the full stack development course provided by Newton School. Link is there in the description box. So सबसे पहले अगर हमें मैप्स को यूज करना है तो हमें उसकी लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा. अगर हम यूज कर रहे हैं मैप, so this is the library #include maps. #include map using namespace std, and let's include iostream also for cin and cout. #include iostream, and let's start our main function int main. So सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? Let's create a map. अब इसे क्रिएट कैसे करना है? हमें दो चीजें चाहिए. फर्स्ट इज द टाइप ऑफ आवर की एंड द सेकंड इज द टाइप ऑफ आवर वैल्यू. सो अभी के लिए लेट्स हैव अ स्ट्रिंग इंट पेयर. सो लेट्स नेम द मैप एज m, एंड एज वी आर यूजिंग स्ट्रिंग, सो हमें स्ट्रिंग को भी इंक्लूड करना पड़ेगा. सो #include string. नाउ लेट्स से हमारे पास एक इनपुट है of type array of string, and again जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था अबाउट स्टोरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स व्हिच आर गिवन टू अस, वही वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. सो वी हैव अ array of string. Let's say this is our input, and यहाँ पे हमारे पास है I, first is I, then M. Now हम इस array के ऊपर iterate करके सारी values अपनी map में डालेंगे. So what we will do, for loop int I equals 0, I less than array of size, that will be input dot size,
and then I plus plus. Now what we will check, क्या हमारे पास ये element already present है. So first thing we will check first is m dot find and input of I. If this is equal to m dot end, that means हमें नहीं मिला अपना एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, m dot insert make pair, क्योंकि हमारा यहाँ पे पेयर है, input of I जो string है, कॉमा count, and count हमें एक बार मिल चुका है तो count should be 1. अगर हमें मिल गया है that means हम क्या कर सकते हैं, सिंपली उसे असेस करेंगे, input of I and we will do plus plus. That's it. हमने क्या किया, हमने फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लिया अपने मैप में. अब लेट्स से हमें अपने मैप को आइटरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ऑटो we have a iterator which is starting with m dot begin and till iterator is not equal to m dot end we want itr plus plus, right? and हमें क्या प्रिंट कराना है, अब सी आउट itr of first, तो फर्स्ट हमारा की वैल्यू की आनी चाहिए एंड उसके बाद itr second. That's it. and last में enter. So let's try to run this code. हमने इसमें क्या किया है, we have a input string, हमने काउंट किया उसमें जितने भी strings present है उनका काउंट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एंड लास्ट में हमने उसे सी आउट करवाया. So let's try to run this code. So you all can see now हमारे पास जो ITR फर्स्ट से आया है that is the key, जैसे C++ like and I, and उसके बाद हमारे पास count given है, right? So this is working fine and as you can see यहाँ पे हमने map यूज किया था, that is why जो हमारा आंसर आया है वो ordered आया. that means हमारा जो key है वो ordered तरीके से आया है. C हमारा सबसे पहले आता है alphabetical order में as compared to बाकी जितने हमारे पास strings available हैं. So first is C, then I, then A and then L and R. अगर हम यहीं पर map की जगह unordered map यूज करते, unordered map, so let's see हमारा क्या डिफरेंस आता. यहाँ पे भी unordered map and let's see. So as you can see अब हमारा स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, यहाँ पे हमारा A बाद में आया है एंड M पहले आया है, राइट? तो हमने पहले केस में देखा था कि सबसे पहले हमने लेंथ को देखा एंड उसके बाद अगर सेम लेंथ है तो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपनी कीज को मेंटेन करा. बट यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है बिकॉज वी हैव यूज्ड अनऑर्डर्ड मैप एंड एज यू कैन सी मैंने कोई भी फंक्शन चेंज नहीं किया है. सो दैट मीन्स almost all the useful functions are same in map and unordered map. It's just that unka implementation, internal logic and what is the internal data structure they are using wo different hai. So please take care of it and before using any data structure or STL uska jo core concept hai, internals है उसे ज़रूर देखना पढ़ना and interview में भी वो काफ़ी help करता है and it will also give you confidence about all the things that you know or you use in your code, right? So that is for today's video. I hope you like it and I hope you find it very useful. If yes, don't forget to subscribe our channel and please share it with your friends. Thank you so much.